غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ تاحال جاری 24 گھنٹوں کے دوران رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مصری میڈیا کے صحافی اور مواصلاتی کمپنی کے 2 اہلکار سمیت مزید 125 فلسطینی شہید 265 سے زائد افراد زخمی صہیونی فوج کی جانب سے گزشتہ 100 روز میں 5875 فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا۔ اقوام متحدہ نے غزہ جنگ کے 100 دنوں کو منقسم انسانیت پر دھبا قرار دے دیا۔ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ پر جاری حملے کم کر دے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جون کربی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ اسرائیل سے غزہ پر حملوں کی شدت کم کرنے سے متعلق بات کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے 100 دن 100 سال کے برابر ہیں۔ فلسطین جن مشکلات سے گزر رہا ہے ان کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ غزہ میں جارحیت رکنے تک اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رہیں گے۔ بیروت میں خطاب کرتے ہوئے حسن نصر اللہ نے کہا کہ بحیرہ احمر میں امریکی اقدامات نے تمام جہازوں کی آمد و رفت کو خطرے میں ڈال دیا۔ امریکی اقدامات کے بعد بحیرہ احمر میدان جنگ بن گیا ہے۔ عالمی سطح پر قیمتوں میں کمی اور شرح مبادلے میں اضافے کے سبب آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت فروخت میں 9 روپے فی لیٹر کم، ڈیزل کے نرخ بھی 2 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ اوگرا آج سمری وزارت پیٹرولیم کو بھیجے گی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ سماعت کے حوالے سے سردار لطیف کھوسہ عدالت عظمیٰ میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کیا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے اجلاس میں عام انتخابات کے لیے تقریباً 25 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ووٹر مارک بیلٹ پیپرز چھاپے گا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ مظاہر نقوی نے گزشتہ ہفتے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، تاہم سپریم جوڈیشل کونسل نے سابق جج کے استعفے کے باوجود کونسل کی کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل نے مستعفی جج سپریم کورٹ مظاہر علی اکبر نقوی سے متعلق سماعت اوپن کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما دانیال عزیز نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کرنے کا الزام عائد کرنے پر پارٹی کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کو ہٹ جانے کا نوٹس بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ شکر گھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دانیال عزیز نے کہا کہ سوشل میڈیا پر میرا ٹویٹر کے علاوہ کوئی اکاؤنٹ نہیں۔ احسن اقبال ثابت کریں کہ میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کی آج سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز۔ اوکاڑا میں سیاسی پاور شو۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز اوکاڑا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی۔ اوکاڑا کے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ 20 فٹ چوڑا اور 88 فٹ لمبا سٹیج بھی تیار۔ جلسہ گاہ کے اندر اور باہر
लीगी कायदीन की फ्लैक्सेस और पार्टी परचम अवेजा कर दिए गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गुजरावाला में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर बस उलट गई। 2 मुसाफिर जा बहक, 26 अफराद शदीद जख्मी। बस में 50 अफराद सवार थे। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और पाकिस्तान नेटबॉल टीम ने हांगकांग को शिकस्त देकर चैलेंज कप जीत लिया। पाकिस्तान ने मेजबान टीम के खिलाफ चैलेंज सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान ने तीसरे मैच में हांगकांग को 33 और 58 से शिकस्त देकर चैलेंज कप अपने नाम किया। पाकिस्तान की जानिब से तीसरे मैच में मोहम्मद वसीम अकरम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। 24 घंटों के दौरान रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की बमबारी में मिस्री मीडिया के सहाफी और मवासलाती कंपनी के 2 एहलकारों समेत मजीद 125 फलस्तीनी शहीद हो गए। 265 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मिस्री टीवी ने अपने बयान में इंसानी हुकूक और सहाफियों की आलमी तंजीमों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए इल्जाम आयद किया कि इसराइली फौज ने यजान अल जवेदी को गजा में टारगेट बनाकर शहीद किया। सहाफियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना था कि इसराइली अफवाज के हाथों शहीद होने वाले सहाफियों की तादाद 82 हो चुकी है, जिनमें 75 फलस्तीनी सहाफी शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा में मवासलाती निजाम का ब्लैकआउट अब भी जारी है। मवासलाती और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। इधर मगरबी किनारे में भी इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। छापामार कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 फलस्तीनी नौजवान शहीद कर दिए गए। सेहूनी फौज की जानिब से गुज़िश्ता 100 रोज में 5875 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा जंग के 100 दिनों को मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा करार देते हुए कहा कि रवां बरस के आगाज से इंसानी इमदाद की रसाई के मामले पर इसराइली पाबंदियों में इजाफा हो गया है। तयशुदा इमदाद में से अब तक सिर्फ 21% इंसानी इमदाद गजा बेची जा सकती है। अमेरिका ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा पर जारी हमले को कम कर दे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना था कि इसराइल की हमास के खिलाफ जंग को खत्म करने का ये सही वक्त है। इसराइल से गजा पर हमलों की शिद्दत कम करने से मुतालिक बात की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी का यह कहना है कि गजा के शहरियों के लिए 100 दिन 100 साल के बराबर हैं। फलस्तीनी जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ लंदन समेत दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ हजारों अफराद ने मुजाहरे किए और इसराइल से निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा भी किया। इसराइल की गजा पर हमलों में हजारों बच्चों समेत 23,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला। लुबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि गजा में जारहियत रुकने तक इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। बैरूत में खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बखीरा अहमर में अमरीकी इकदामात ने तमाम जहाजों की आमदोरफ्त को खतरे में डाल दिया। अमरीकी इकदामात के बाद बहीरा अहमर में मैदान जंग बन गया है। अमरीका और बरतानिया के हमलों के बाद यमनी बहीरा अहमर में
गजा की हिमायत रोक देंगे, ये अमेरिका की गलत फहमी है। बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। हस्बुल्लाह के सरबराह ने मजीद कहा कि जहाजों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्दअमल है। लुबनान के महाज पर गजा की हिमायत इसराइली जारहियत रुकने तक जारी रहेगी। गजा में जारहियत रुकेगी तो कोई बातचीत होगी। इराकी और यमनियों का भी गजा में जारहियत रुकवाने का मुतालबा है। अमेरिका ने बहीरा अहमर में आलमी जहाजों के 95% तहफ़्फ़ुज़ को तबाह कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अगर अमरीकियों के पास दिमाग होता तो उन्हें समझ आती कि तमाम मुहाज खुलने का सबब एक यही है, ये नस्ल परस्त और मगरूर ना होते तो ये बात समझ आते। ये नताइज रोकने की कोशिशों में हैं, जाएं जाकर वजह ठीक करें, गजा में जारियत खत्म करें। आलमी सतह पर कीमतों में कमी और शरह मुबादला में इजाफे के सबब आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का बड़ा इम्कान है। जराये के मुताबिक कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वाज़ेह इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है, जबकि डीजल के नरख में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मतवक्के। लाट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल में भी 1 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। कीमतों के मुतालिक ओगरा अपनी समरी वजारत पेट्रोलियम को आज भेजेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों का ऐलान वजीर आजम से मुशावरत करने के बाद वजारत खजाना की जानिब से कर दिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि आलमी सतह पर कीमतों में कमी और शरह मुबादला में इजाफे के सबब आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। जराये के मुताबिक कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत फरोख्त में 9 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान, जबकि डीजल के नर्ख में 2 रुपए फी लीटर तक कमी मतवक्के। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत करनी थी। समाअत के हवाले से सरदार लतीफ खौसा अदालत उस्मा में पेश हुए और चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ आजीजा से मुकालमा किया कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। सरदार लतीफ खौसा ने बताया कि मुझे हिदायत मिली है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपने हमारा फैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। आपने जो फैसला किया उसका मलबा हम पर न डालें। पीटीआई के रहनुमा लतीफ खोसा ने दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छपाने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन वाटर मार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। जराये ने मजीद बताया कि आम इंतखाबात के लिए 3 प्रिंटिंग मशीनों से बैलेट पेपर्स छपवाए जाएंगे और बैलेट पेपर्स की छपाई के वक्त प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त से सख्त कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज ने पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई करने का इल्जाम आयद करने पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को हट जाने का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया। शकरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दानियाल अजीज ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर के अलावा कोई अकाउंट नहीं। एहसन इकबाल साबित कर दे कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर एहसन इकबाल को हट जाने का नोटिस भेजूंगा। सोशल मीडिया पर किरदार कुशी कैसे कर सकता हूँ? मेरा तो अकाउंट ही अरसे से इनएक्टिव है। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राब्ता किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि एलपीजी का कारोबार कौन करता है इलाके में सब जानते हैं। मेरी जारी सुई गैस के मंसूबों को किसने रोका? नवाज शरीफ जेल में थे तो मरियम नवाज का अपने हल्के में जलसा कराया। नारोवाल के मौजूदा नून लीगी टिकट होल्डर्स में से कोई एक भी जलसे में शरीक न था। 2013 में एहसन इकबाल तो मेरे मुखालफों से राबते में थे। क़यादत को मेरे खिलाफ नोटिस जारी करने पर एहसन इकबाल ने मजबूर
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गुज़िश्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि वफाकी हुकूमत ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न करने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई इंतखाबात तक मुलतवी कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने गुज़िश्ता हफ्ते ओहदे से इस्तीफा दिया था, जिसे सदर पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज के इस्तीफे के बावजूद काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज सुप्रीम कोर्ट मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से मुत्तलिक समाअत ओपन करने की इजाजत दी थी। मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा किया था, जिस पर काउंसिल ने उनकी दरख्वास्त मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। मुस्लिम लीग नून आज से इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज करने के लिए ओकाड़ा में सियासी पावर शो करेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ओकाड़ा में जलसा आम से खिताब करेंगी। इस हवाले से ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 20 फुट चौड़ा और 88 फुट लंबा स्टेज भी तैयार कर लिया गया। जलसागाह के अंदर और बाहर लीगी कायदीन के फ्लैक्सेस और पार्टी परचम भी अवेजा कर दिए गए। मतवालों का लहू गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए जा चुके। रात गए जलसागाह में पार्टी कारकुनान की जानिब से आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। पार्टी के जिला क़यादत ने आज के जलसे में 50,000 कारकुनान इकट्ठे करने का दावा करते हुए बताया कि फुटबॉल स्टेडियम ओकाड़ा में अभी भी 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। दूसरे जानिब मुस्लिम लीग नून ने 15 जनवरी से 30 जनवरी तक इंतखाबी जलसों को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अलग अलग इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मरियम नवाज आज बरास्ता मुल्तान रोड ओकाड़ा जलसागाह पहुंचेंगी। पत्तोकी में भी मुकामी सियासी क़यादत की जानिब से हला हाई प्लस पर मरियम नवाज के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मरियम नवाज का हल्ला बाई फ्लाईओवर के पास वालेहाने इस्तकबाल किया जाएगा। सियासी क़यादत और कारकुनान की कसीर तादाद फूल नगर से पत्तोकी हल्ला बाईपास पहुंचेगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज का कारकुनान से मुख्तसर खिताब भी मुतवक्की है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ओकाड़ा में पावर शो की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। लीगी कायदीन के फ्लैक्सेस और पार्टी परचम अवेजा कर दिए गए हैं। जलसे की तैयारियों के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से। जी दाऊद, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा फुटबॉल स्टेडियम में, जहां पर आज नून लीग अपना पावर शो करने जा रही है। यहां पर जो तैयारियों की अगर बात की जाए, यहां पर जो स्टेज है वो 40 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा स्टेज लगा दिया गया है। यहां पर जो कुर्सियों की बात की जाए तो कुर्सियां हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कुर्सियां लग चुकी हैं। यहाँ पर फ्लैक्सें लगा दी गई हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जब हमारी DP उकाड़ा से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने 1500 के करीब जो एहलकार हैं वो तैनात कर दी गए, वॉल थ्रू गेट लगा दी गए। और जब हमारी यहाँ पर के मुकामी कायदीन रियाजुल हक जज से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ तहसीलों से भी रैलियाँ जो हैं वो रैलियों की शक्ल में यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर तादाद लोगों की तादाद जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएगी और ये उकाड़ा की तारीख में जो है बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तलीमी सरगर्मियों की तो यहाँ पर 11 बजे के बाद तलीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल कर दी जाएंगी। और यहाँ पर अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बहुत सर्द दिखाई दे रहा है और यहाँ पर धुंध जो है वो अपना राज जमाए हुए है। जी पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बाद सदे निगाह कम होने पर मुख्तलिफ मकामात से मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शॉर्टकोट से फैसलाबाद तक बंद है। M5 शेरशाह से जाहिरपेट तक और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें
اور اپنا سفر دن کی روشنی میں مکمل کر کے دھند کے آغاز سے پہلے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ شہر اور اس کے مضافات میں شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی ہے۔ شہریوں نے حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک پولیس سے اقدامات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں سرگودا روڈ پر موجود ہمارے رپورٹر محمود بیگ سے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل شہر اور اس کے مضافات میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز دھند کے باعث جی ٹی روڈ کی ٹریفک جو ہے سست روی کا شکار ہو چکی ہے، جبکہ سردی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اچھا بھی فیل کر رہے ہیں۔ دھند میں لوگ سیر سپاٹا بھی کر رہے ہیں اور سفر بھی کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے گزرنے والے جو شہری ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کا موسم کیسا۔ جی السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ آج کے موسم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی زبردست موسم ہے، دھند اچھی پڑ رہی ہے، لیکن دھند کے باعث آئے روز حادثات یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہاں پہ فروخ آباد روڈ ہے، سنگل ہونے کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہے، اور ریفلیکٹر ٹیگ بھی نہیں لگے ہوئے اور لائننگ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ اس کے متعلق جو ہے نا ڈرائیور حضرات کو آگاہ کریں، اور تاکہ پاکستان میں ہر سال جو حادثات ہوتے ہیں اور لاکھوں جانیں جو ضائع ہو رہی ہیں ان سے جو ہے نا اس کی روک تھام ہو سکے۔ آج بالکل جیسا کہ شہر بھر میں جو ہے دھند کے بادل ابھی بھی منڈرائے ہوئے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں سرگودا روڈ پر، اور فاروق آباد روڈ پر ٹریفک دو مختلف حادثات کے اطلاعات بھی ہیں، جہاں پر دو گاڑیاں آپس میں ٹرائیں اور ایک ٹرک جو ہے وہ الٹ گیا ہے۔ اسی طرح جی ٹی روڈ پر بھی ٹریفک حادثات کی اطلاعات، اور ریسکیو اہلکار جو ہے وہ زخمیوں کو اسپتالوں میں منتقل کر رہے ہیں۔ اور جہاں دھند زیادہ ہے وہیں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ لوگ جو ہے وہ گرما گرم پکوانوں کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں شدید دھند کی وجہ سے مسافر بس الٹ گئی، 2 مسافر جاں بحق، 26 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بس میں 50 افراد سوار تھے۔ مسافروں سے بھری بس کوہاٹ سے لاہور جا رہی تھی کہ گجرانوالہ میں شدید دھند کے باعث موڑ کاٹتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ حادثے کے بعد ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جس میں سے متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے جائے حادثہ کا جائزہ لینے کے بعد مزید قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور ناظرین، ملک بھر کی طرح انسالہ والی اور گردوانوا میں بھی شدید دھند کا راج برقرار، حد نگاہ کم ہو گئی۔ دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ انسالہ والی سرگودا روڈ پر ٹریفک سست روی کا شکار۔ ٹریفک پولیس نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال شہر میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ برقرار ہے۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے خالد چودھری۔ جی خالد، سرد موسم کی صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح خانیوال کی اگر بات کی جائے تو خانیوال میں بھی جو ہے شدید سردی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ دھند جو ہے وہ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے حد نگاہ جو ہے انتہائی کم نظر آتی ہے۔ تو ڈاکٹر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ بچوں کو جو ہے گھروں میں رکھیں، سخت سردی سے جو ہے ان کو بچائیں اور گرم ملبوسات کا جو ہے استعمال کروائیں تاکہ بچے جو ہے سردی سے بچے رہیں۔ تو ٹریفک پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ مسافر حضرات جو ہیں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور اگر کوئی ضروری سفر جو آپ نے کرنا ہے تو وہ دھند کی جو ہے کم ہونے کی بنا پر جو ہے وہ سفر کا اپنا آغاز کریں۔ تو موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی یہی عوام کو جو ہے وہ پیغام دیا گیا ہے کہ دھند کے اندر جو ہے فوگ لائٹس کا استعمال کریں، جہاں پر موٹر وے کو بند کیا گیا ہے وہاں پر سفر سے اجتناب کریں تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ تو لوگوں سے جب شہریوں سے خانیوال کے شہریوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کام کاج جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ خون جما دینے والی سردی کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے گھروں تک ہی محصور ہو کر رہ گئے۔ نظام زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں نے جو ہے سردی کو دور بھگانے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر لوگ جو ہے پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ کی جانب سے خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کورٹ نے سردی کی آمد کے ساتھ باجور، محمد، خیبر، سوات، دیر، بنیر اور چترال کے مختلف علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا۔ فری میڈیکل کیمپس میں ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف نے 7000 سے زائد مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا اور انہیں ادویات بھی فراہم کی۔
कई मरीजों को इलाज के लिए मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी तशखीस के लिए मदद फराहम की गई। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने अवाम को मौसमी बीमारियों से मुतालिक आगाही दी। पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट ने इस अज़्म का इजहार किया कि फ्री मेडिकल कैंप के जरिए दूर दराज इलाकों में अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी जारी रहेगी। कोयटा की आवाम ने बॉर्डर पर पासपोर्ट के निफाज का खैर मकदम करते हुए बॉर्डर इसलिए बनाए जाते हैं कि एक मुल्क में कानूनी तौर पर जाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शन लिया गया है ये हमारी हिफाजत के लिए है। आवाम का मजीद कहना था कि दुनिया में किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, आपको बगैर वीज़ा या पासपोर्ट के दाखिल नहीं होने दिया जाता। जो लोग कानूनी तरीके को ख़त्म करने की डिमांड करते हुए धरना दे रहे हैं ये बेवकूफ़ी है। ये लोग अपने वक्त और रोज़गार को तबाह कर रहे हैं। अवाम का मजीद कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत हसास हैं। ऐसे में इस तरह के इकदाम बहुत मस्बत और ज़रूरी हैं। इस इकदाम पर धरना नहीं होना चाहिए और कानूनी तरीके से इस पर अमल दरामद होना चाहिए। बॉर्डर लगाने का मकसद यही है कि ये हमारी हदूद हैं और इस हदूद से ना तो हमने खुद बाहर जाना है ना किसी और को अंदर आने देना है। बॉर्डर्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि एक मुल्क में आप लीगली आ जाएं। फिर स्टेट्स ने जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त ये एक्शन लिया हुआ है ये हमारे हिफाजत के लिए लिया है। दुनिया में कहीं पे भी आप जाए आपको बगैर वीज़ा और पासपोर्ट के कहीं पे भी एंट्री नहीं दिया जाता। इन लोगों ने जो डिमांड की है कि आप लीगल तरीका ख़त्म कर दें ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। तो ये अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की मुतरादिफ है मेरे ख्याल से, और वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपने रोज़गार को तबाह कर रहे हैं और अपने गरीबी को तबाह कर रहे हैं। कि पाकिस्तान के हालात बहुत सेंसिटिव हुए हैं, तो इस सेंसिटिविटी में ये इकदाम मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है और ये होना, इस पे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से तो इस पे धरना नहीं होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंटेशन है उसके थ्रू आप आएँ। बेवकूफ़ लोग हैं, क्या ज़रूरत है धरना करने की? क्या गवर्नमेंट छोड़ता है? क्या कोई अपने घर में किसी को छोड़ेगा? क्या अननोन पर्सन? अब अगर इस तरह हम हटाने पे आए तो फिर सारे बॉर्डर हटा दें, इंडिया के भी हटाएं, यहाँ वहाँ के भी हटाएं। कोई मुल्क पागल है जो बाढ़ लगा रहा है या बॉर्डर लगा रहा है? बॉर्डर के मीनिंग्स यही है कि आप बॉर्डर लगाओ, आप अपने हदूद में रहो। आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहो। आप XYZ किसी और कंट्री के हो तो आप अपने हदूद में रहो। आने जाने के तरीके 2 करोड़ हैं, आप पासपोर्ट बना लो, वीज़ा लगवा लो। साहिवाल पुलिस थाना गला मंडी की बड़ी कार्रवाई। बैनल स्लाइड डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार करके 14 मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। SDPO सिटी सर्कल राना इफ्तिहार अहमद की ज़ेर निगरानी SHO थाना गला मंडी के सब इंस्पेक्टर AD शाहीन और टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पाकपतन, ओकाड़ा समेत दीगर असलाह की पुलिस को संगीन वारदातों में मतलूब थे जिनसे मजीद इंकशाफ की तवक्को की जा रही है। शहरियों ने साहिवाल पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा है। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 8 कार्रवाइयों में 100 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद करके 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनायत पोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर से 350 ग्राम चर्स पकड़ी गई है। GPO लाहौर में बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल से 320 ग्राम हीरोइन बरामद। रावलपिंडी कोरियर ऑफिस में कैलिफोर्निया से भेजे गए पार्सल से 200 ग्राम वीट पकड़ी गई है। चनाब टूल प्लाजा GT रोड गुजरात के करीब ही 72 किलो चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संबड़ियाल के करीब 1300 किलो चर्स और 1.2 किलो फ्यून बरामद करके 2 मुलजमान गिरफ्तार। जहलम के करीब 6.9 किलो चर्स और 20 ग्राम आइस बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बलोचिस्तान में भी मुलजिम से 3.6 किलो चर्स, खैबर के इलाके ज़ख़ाक़ैल से 2.3 किलो आइस बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,68,000 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज वापस जाने वाले 837 अफगान शहरियों में 243 मर्द, 206 खवातीन और 348 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 52 गाड़ियों में 87 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई।
پی ٹی آئی امیدوار ممتاز مصطفیٰ رحیم یار خان کا مسلح ملزمان کے ہمراہ اور آفس پر دھاوا۔ تحریک انصاف کے امیدوار N171 رحیم یار خان ممتاز مصطفیٰ نے آر آفس پر مسلح ساتھیوں سمیت دھاوا بول دیا۔ ممتاز مصطفیٰ اور ان کے مسلح ساتھیوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے حملے اور انتظامیہ کو یرغ مال بنایا گیا۔ امیدوار ممتاز مصطفیٰ تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ جمع کرا کر انتخابی نشان بلے باز لینے کا خواہاں تھا۔ آر او کی جانب سے الیکشن کمیشن کا حکم نامہ دکھانے پر ممتاز مصطفیٰ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ آر او کی جانب سے بارہا سمجھانے پر ممتاز مصطفیٰ سیخ پا ہو گیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے مسلح ساتھیوں سمیت عملے کو کئی گھنٹے تک یرغمال بنایا گیا۔ امیدوار ممتاز مصطفیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ چیف الیکشن کمشنر نے نوٹس لے کر صوبائی الیکشن کمشنر اور امیدوار کو تحقیقات کے لیے اسلام آباد طلب کر لیا۔ سردی کے خشک موسم میں جنوبی وزیرستان سے غذائی اجناس سے بھرپور چلغوزہ عوام کے لیے قدرت کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ پاکستان دنیا میں پائن نٹ چلغوزہ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے، جو دنیا کو سالانہ 25 سے 30 ارب روپے کا چلغوزہ برآمد کرتا ہے، جس میں نصف حصہ جنوبی وزیرستان کے چلغوزے کا ہے، جو 8 سے 10 ارب سالانہ ہے۔ چلغوزہ کے زیادہ تر جنگلات جنوبی وزیرستان کے علاقے بدر شوال، خامرنگ اور انگور اڈا اور بارڈر کے اس پار برمل اور لمن تک پائے جاتے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کا چلغوزہ جہاں پوری دنیا میں مشہور ہے، وہی سہولیات کے فقدان اور افغان سرزمین سے پھیلائی جانے والی بدامنی کی وجہ سے مقامی کاشتکار ایک طویل عرصے تک پریشان رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک فوج کی مدد سے 850 ملین روپے کی لاگت سے جدید سہولیات سے آراستہ زرعی پارک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس زرعی پارک میں جدید پائن نٹ پروسیسنگ پلانٹ اور سٹوریج کی سہولیات شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملاوٹی کھویا بنانے والے عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم ہو چکی ہے۔ صادق آباد روڈ راولپنڈی میں ڈیری یونٹ پر کارروائی، 700 کلو ملاوٹی کھویا اور 100 کلو مارجرین تلف کر دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ڈیری مصنوعات میں ملاوٹ اور جعل سازی کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری و ساری۔ تفصیلات کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے راولپنڈی میں ڈیری یونٹ پر کارروائی کی۔ ویجیٹیبل گھی اور سٹارچ کی ملاوٹ والا کھویا تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا تھا کہ خوراک میں جعل سازی کرنے والے عناصر کا تعاقب کیا جا رہا۔ کسی بھی شکایات کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے نامزد امیدوار حلقہ N161 سے احمد علی ثانی مولانا اجمل قادری کی طرف سے تختی کا نشان حاصل کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ میں۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی مولانا ڈاکٹر میاں محمد اجمل قادری کے حلقہ قومی اسمبلی N161 الیکشن کمیشن کے دفتر سے احمد علی ثانی مولانا اجمل قادری کی طرف سے تختی کا نشان وصول کرتے ہوئے اس کے بعد انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی گئی۔ مفتی احمد علی ثانی، پیر عمیر عبدالقادری کی قیادت میں مولانا ریاض احمد جنگوی، حاجی عبدالقدیر کارنر میٹنگ جاری۔ سیکرٹری اطلاع لاہور قاری میاں محمد عظیم ریاض قادری کے مطابق جلسوں کا بھی اعلان مولانا ڈاکٹر اجمل قادری ملک بھر میں جلسے بھی کریں گے۔ انشاءاللہ مزید 8 فروری کو انتخابات لازمی ہوں گے اور انتخابات کے التوا کے متعلق سینٹ میں جتنی مرضی قرارداد پیش ہو پاس ہوں، ان کی آئینی حیثیت نہیں، وہ ملک میں غداری کے مرتکب ہو رہی ہیں، ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے حلقہ PP 162 کے امیدوار شہباز کھوکھر کے اعزاز میں چودھری فیصل اور میاں نعیم کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد۔ بلندشہر ٹاؤن کارنر میٹنگ میں حاجی لیاقت میاں فراہیم، چودھری وسیم، سبحان فیصل سمیت اہل علاقہ کی شرکت۔ شہباز کھوکھر نے کہا کہ اہل علاقہ کو اکٹھا کرنے پر چودھری فیصل اور میاں نعیم کا شکر گزار ہوں۔ الیکشن میں جیت کے لیے بھرپور محنت کریں گے اور جیت کو حاصل کر کے علاقے کی خدمت کریں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام محمود بوٹی میں فری میڈیکل کیمپ کا اہتمام۔ حافظ عبید اللہ اور حافظ عبدالرؤف امیدوار برائے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں نے وزٹ بھی کیا۔ امیدواروں نے کیمپ میں آئے لوگوں سے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس حوالے سے حافظ عبید اللہ نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज सुबह से हम जो है ये मेडिकल कैंप कर रहे हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PP 150 के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो बेसिकली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इलाके के अंदर आके अवाम के मसाइल देखे तो यकीनन जो है वो चौधरी नासिर साहब और दूसरे भाइयों से मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन लोग थे और ये वही लोग हैं सही हकदार, और यहाँ से ये लोग आके जो है वो जगह जगह से आके वोट मांग के चले गए, लेकिन 5 साल तक जो है वो यहाँ पे आके मुंह नहीं दिखाया गया और आवाम जो है वो महरूमियों का शिकार है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इस चीज़ का ये अहद कर चुकी है कि जहाँ पे इंशाल्लाह डिज़र्विंग पर्सन लोग होंगे उनकी मुआवनत की जाएगी। खिदमत का अज़म लिए इंशाल्लाह हम हाज़िर खिदमत हैं, और सिर्फ यही नहीं, फलाह के काम जहाँ पे भी होंगे इस इलाके के अंदर PP 150 के अंदर तकरीबन 22 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो हम लगा चुके हैं, 2 सस्ते तंदूर चल रहे हैं और 3 मेडिकल फ्री डिस्पेंसरियाँ जो है वो चल रही हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ पे जैसे मुमकिन हो सका इंशाल्लाह अवाम की फलाह के लिए हम हाज़िर खिदमत होंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो है वो मोटिव ही ये है, मंशूर ही ये है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, सियासत अखलाक के साथ, रियासत वक़ार के साथ इंशाल्लाह। तरफ वालों से कैंप लगा है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो चेक कर रहे हैं, मेडिसिन भी बहुत अच्छे तरीके से वो दे रहे हैं। ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान के डिफेंस फेज 1 के जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा की तरफ से रिहाइश का बाबा अब्दुल रशीद गाजी रोड पर एक पुरनूर सालाना महफिल मिलाद नूर की बरसात का इनेकाद किया गया, जिसके बानी महफिल राना अमानत अली थे। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह की इस रिपोर्ट। ताजरान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान के डिफेंस फेज 1 के जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा मरियम फैब्रिक्स वाले की तरफ से रिहाइश का बाबा अब्दुल रशीद गाजी रोड पर एक पुरनूर सालाना महफिल नूर की बरसात का इनेकाद किया गया, जिसके बानी महफिल राना इमानत अली थे और मेहमानाने खसूसी में नामजद MPA मियां नसीर अहमद, चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर, वाइस चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान मोहम्मद साकिब भट्ट, UC चेयरमैन पिंडी स्टॉप चौधरी बाबर, अलबारी स्टेट एजेंसी राना तलहा चौधरी जाहिद और गुलाम अली कादरी नायब सदर ताजरान इत्तेहाद ग्रुप डिफेंस फेज 1 ने खसूसी शिरकत की। महफिल मिलाद के शुरू होते ही लोगों की एक बड़ी तादाद जोग दर जोग अहमद रजा की रिहाइशगाह की तरफ खिंची चली आई। महफिल मिलाद की शुरुआत तलावत कलाम पाक से की गई, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी ने हासिल की। इसके बाद नकाबत का शर्फ बिलाल हुसैन ख्याल को मिला, जिसके बाद महफिल में मशहूर नातख्वाहों ने एक समा बांध दिया। नातख्वाहों में कारी शाहिद महमूद कादरी ने अपनी आवाज़ के जादू से हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। इसके बाद बहुत सारे नातख्वाह जिसमें शकील अशरफ कादरी, मोहम्मद फ़खर अलवी, साहबजादा सगीर अहमद नक्शबंदी, गुलाम अली कादरी, मोहम्मद आसिफ चिश्ती और मोहम्मद बिलाल कादरी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया, जिसको सुनकर वहां मौजूद हाजरीन जोश ईमानी से झूमने लगे और फिजा नारे तकबीर और नारे रिसालत के नारों से गूंजती रही। सालाना महफिल नूर की बरसात के हाजरीन के लिए सबसे खुशी की बात यह भी थी कि हाजरीन महफिल के लिए महफिल के आखिर में कुरा अंदाजी के जरिए हज और उम्रा के टिकट भी तकसीम किए गए। महफिल के इख्ताम में एक पुरजोश तरीके से दुआ करवाई गई, जिसमें खसूसन फ़लस्तीनियों पर ढाए गए मजालिम से छुटकारे और पाकिस्तान की सलामती व बका के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं और हाजरीन महफिल की आखिर में वसी तरीन फिरोजवालाबाद के इलेक्शन में 6 साल बाद रेड पैनल की बड़ी कामयाबी। आपको बताएं कि फिरोजवालाबाद के इलेक्शन में 6 साल बाद रेड पैनल की बड़ी कामयाबी पर नौमंतखब सदर बाबर जमान गुजर और दीगर अहदेदारान के एजाज में राना हिदायत अलायंस ग्रुप और हामियों की जानिब से खसूसी तकरीब और नाश्ते का एहतमाम किया गया। रेड पैनल की तारीखी फतह पर हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े और फूलों के साथ साथ नोट भी नछावर किए गए। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मोहम्मद यूनिस बहरहाल में नौमुंतखब सदर और विंग टीम के साथ मौजूद हैं। मजीद अखबार उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ बाहर में जहाँ वाइट पैनल और ग्रीन पैनल में कांटेदार मुकाबला हुआ, जिसमें आज रेड पैनल जो है फतेहयाब हो चुके हैं। हमारे साथ जो मुंतखब सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर जमान साहब गुजर साहब, वो हमसे बात करेंगे। जैसे आज बताइएगा सदर बनने के बाद आप कैसा लग रहा है आपको? सर अल्लाह ताला की ज़ात का इंतहाई ममनून हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ नाचीज़ को इस कदर इज़्ज़त बख्शी है कि आज मैं सब डिवीजनल कोर्ट्स फिरोजवाला का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ हूँ, जो 3 तहसीलों का मुश्तमिल है
اور یہ سب کابشیں میرے بارڈ ممبر، میرے بھائیوں، میری قیادت کی ہیں جنہوں نے مجھے بے حد سپورٹ کیا. اب میں نام لینا شروع کروں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ چاہیے کہ جن دوستوں کا میں مشکور ہوں ان کا نام گنواؤں. تو میرے بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے بے حد سپورٹ کیا ہے. یہاں پہ میں ایک نام راہ محمد طارق خان صاحب اور عتیق الرحمان بٹی صاحب کا ضرور لینا چاہوں گا. آصف بخاری صاحب نے انتھک محنت کی ہے، خالد گجر صاحب، اکبر قریشی صاحب، عمران بٹی صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میت بٹی صاحب نے مجھے جس طرح عزت بخشی، معظم شمسی صاحب جو میرے سامنے ہیں، انشاءاللہ جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس بار میں ایک کام نہیں 100 کام ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے درجہ بہ درجہ ساری چیزوں کو پروے کار لاتے ہوئے، اپنے وسائل کو پروے کار لاتے ہوئے باہر کی حالت کو انشاءاللہ ایگزیکٹو کلاس بنائیں گے. باہر کی حالت کو ایگزیکٹو کلاس بنائیں گے. ہمارے ساتھ کچھ اور بھی وکلا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے. جی سر آپ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ پاک کی فضل اور کرم سے آج ہم نے اپنے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور لیڈیز لائر کی محبت اور محنت سے ہم نے یہ دن دیکھا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو عزت ہمیں ہماری بار نے بخشی ہے ہمارے بھائیوں اور بزرگوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو دگنا کر کے واپس کریں انشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ جو جیت ہے ریڈ پینل کی، یہ بہت بڑی جیت ہے بابر زمان گجر کی قیادت میں. اور انشاءاللہ جو بار کا پچھلے کئی برسوں سے جو حشر ہوا ہے، یہ اب سارے کے سارے جو ویلفیئر آف بار اور وکلا کی جو فلاح و بہبود کیا ہے، اس کے لیے ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. اور جس طرح انشاءاللہ دوستوں نے ہمیں پیار کیا ہے اور ریڈ پینل جو ہے وہ بابر زمان گجر کی قیادت میں جیت چکا ہے، تو انشاءاللہ جن کمٹمنٹس کے اوپر ہم نے ووٹ لیے ہیں ان کا ہم ضرور ریٹرن کریں گے. جس کمٹمنٹ کے اوپر ہم نے ووٹ لیے ان کو ضرور پورا کریں گے. جو ہمارے ساتھ بھائی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، اس والے سے کیا کہتے ہیں. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.